So let us start with this. Mr. Jeet, an employee of a company, gets the following emoluments and benefits. Basic wages है उसका 35,000 per month. DA is 100% of basic. Employer's contribution to PF 10% of basic. Employer's contribution to ESI, that is your employer state insurance. Okay, yeah, 4% of basic, bonus 15%, other allowances 42,500 per annum. ठीक है, yeah. Next क्या बोला है, yeah. He works for 3,000 hours per month, per annum. पूरे साल वो 3,000 hours काम किया. Out of which 600 hours are normal idle time. ये idle time है, ठीक है. तो उसने एक्चुअली कितने घंटे काम किया? 2,400. 3,000 ही वर्क और उसमें से 600 नॉर्मल आइडल टाइम था, जैसे हो सकता है लंच ब्रेक, टी ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स, ऑल दैट. ओके, सो वो मिला के 600, मतलब 600 आवर्स में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो एक्चुअली उसने काम किया 2,400 आवर्स. मिस्टर जीत वर्क 30 effective hours on job number B. Simultaneously, Jeet was working for 30 hours, job number B, where, okay, direct material was 50,000, overheads was 60% of combined cost of material and labor. What do you mean by combined cost of material and labor? It means prime cost, right? Direct material plus direct labor is what? Prime cost, yeah. So it means that. ठीक है, तो overheads calculation नहीं दिया, लेकिन बोला it is 60% of prime cost. The sales value of the job is quoted to earn 25% on cost. ठीक है, तो selling price कितना है? 25% on cost. ठीक है, yeah. You are required to find out effective hourly cost of Mr. Jeet and expected sales value of job number B. Okay, so this is a question of labor along with job costing. ठीक है, okay, yeah. So let us start with so just write a note. We'll start with this note. Actual hours worked, yeah, write down actual hours worked. Actual hours worked is how much? Yeah. 3,000 less idle hours. Okay, no. You do like this. 3,000 less idle hours. Idle hours is how much? 6,000 hours. So कितना हो गया actual hours work? 4,000 to 2,400. Okay. So you can even write like this: gross hours minus idle hours. Gross hours minus idle hours is net hours, also known as actual hours worked. Am I clear about this? Net hours is equal to gross hours minus idle hours. Net hours का दूसरा नाम है actual hours worked. Okay, yeah, done. Now let us compute. Okay, calculation of effective hourly cost of Mr. Jeet पूछा है ना? Yeah, start. Statement showing effective hourly cost, यही पूछा है, hourly cost of Mr. Jeet. Okay, start. Right.
particulars amount. First basic wages कितना 35,000 मल्टीप्लाइड विथ आपका ये जो है ना बच्चा ये पर एनम है, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट है वो भी पर एनम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नेट आवर्स है वो ईयरली है। अगर ये मंथली होता तो मैं इसको भी मंथली बनाती, पर आपका नेट आवर्स क्या है, ईयरली है। ओके, सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होना चाहिए ना। अब इसको बाद में तो आप हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव आवरली कॉस्ट? एनटीआर। ओके, तो आपको एनटीआर निकालना है, रेट पर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो एनटीआर आपको कैसे मिलेगा? जो भी आपका कॉस्ट का टोटल है डिवाइडेड बाय नेट आवर्स। ओके, सो दिस विल गिव मी एनटीआर। सो माय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस हैज टू बी सेम। तो अगर मेरा न्यूमरेटर ईयरली है तो मेरा डिनोमिनेटर भी ईयरली होना चाहिए। ओके, या सो बेसिक वेजेस 12 मंथ्स, ठीक है। सो 35,000 into 12, 4,20,000. नेक्स्ट बेसिक, नो व्हाट वाज दैट, डीए, सॉरी डीए दिया था, डीए डियरनेस अलाउंस कितना बोला है? 100% ऑफ बेसिक वेजेस। सो 4,20,000 का 100% इज 4,20,000। ओके, सो ठीक है, इसका टोटल कितना होगा? 8,40,000, राइट। नेक्स्ट, employer's contribution to PF. Okay, so right up next is employer's contribution to PF. कितना बोला है? 10%। 10% of what? 10% of basic wages. So for 4,20,000 का 10% कितना होता है? 42,000. Okay. Next, employer's contribution to ESI. How much it is? 4% बोला है। 4% of basic wages. So 4,20,000 का 4%, 4,20,000 का 4%, 16,800। ओके, तो ये सब आपके वेजेस को बढ़ाएगा, ऐड करना है इसमें। ओके, देन बोनस 15% ऑफ बेसिक, 15% ऑफ बेसिक वेजेस। तो 4,20,000 का 15%, 63,000। नेक्स्ट, अदर अलावेंसेस, okay, that was given 42,500 per annum, ठीक है। now total this, okay, so this will give me what? My total earnings, yeah, total wages. So you can call this as total earnings, or you can call this as total wages, it's up to you, और total employee cost एक ही बात है। okay, plus 16,800 plus 42,500 plus 42,000 plus 4,20,000. No, not 4,20,000, 8,40,000.
8,40,000 plus 42,000 plus 16,800 plus 63,000 plus 42,500. So 10 lakh for 300. So this is my answer. 10 lakh for 300. ठीक है, मिल गया मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट, हाँ मिल गया। अब क्या, मुझे क्या निकालना है, NTR। ठीक है, तो मुझे मेरा नेट आवर्स पता है, हाँ पता है, नेट आवर्स, नेट लेबर आवर्स आई मीन, net labor hours I have written note, how much, 2400। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको NTR मिल जाएगा। ओके, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। सो इफेक्टिव hourly cost, also known as NTR or rate per hour। How will you get this? दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड बाय 2400, 418.45। ओके, राउंड ऑफ कर दो, 46। सो माई आंसर इज 418.46। 1 घंटे का ये एम्प्लॉय कॉस्ट है, ठीक है, वेजेस पर आवर। एम आई क्लियर टिल योर, समझ में आया? ओके, क्या पूछा था क्वेश्चन में आपको, NTR पूछा है, ये NTR। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए उनको, सेल्स वैल्यू फॉर जॉब नंबर B। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट दैट, दैट इज आल्सो इजी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, ये हो गया, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन I'll do it here. Okay, start। Expected sales value of job number B। Okay, start। Particulars amount। Okay, so it is very similar to cost sheet, है, job cost sheet, very similar। तो cost sheet किससे start होता है, डायरेक्ट मटेरियल से, तो start with डायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है क्वेश्चन में, फॉर जॉब नंबर B 50,000। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया नहीं है बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, उसने जॉब नंबर B के लिए 30 आवर्स काम किया, 30 घंटे काम किया है, मल्टीप्लाइड विथ NTR। ओके, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड multiplied with NTR, this is how you will get। so how much is my NTR, 418 point कितना था, 46। okay, so into 30, राउंड ऑफ कर दो, 12,554। so 12,554। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है सब में तो छोड़ दो। okay, so this will give me what, this will give me prime cost। so this will be how much, 62,555, 554 सॉरी। इसके बाद क्या, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या, ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में व्हाट डू आई हैव ओवरहेड्स। ओके, ओवरहेड्स कितना बोला है, 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ओके,
क्वेश्चन में क्या बोला था? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर का मीनिंग क्या होता है? प्राइम कॉस्ट. एम आई क्लियर? इज इट क्लियर? तो 37,532, 37,532. Okay, add it. So this will give me what? Total cost, मतलब cost price या cost of sales भी आप बोल सकते हो इसको. Add profit to this, अपने को क्या मिलेगा? Sales. Okay. प्रॉफिट कितना बोला था? 25% ऑन कॉस्ट. तो दिस इज 25 ऑन कॉस्ट. द कॉस्ट इज 100, so sales is 125. Cross multiply, you will get the answer. Okay, cross multiply. 37,532 plus 62,554. 10 lakh, 1 lakh, 086. Cross multiply into 125 divided by 100. 1,25,000, 108. 1,25,108. Difference is profit. 1,25,108 minus 86. So profit is 25,022. 25,022. Am I clear? Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? ओके. सो NTR पूछा है और क्या पूछा है एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर जॉब विच दैट एम्प्लॉई इज वर्किंग ऑन. ठीक है. So next, coming on to this. Okay, this is also a very good sum. From the following particulars of April 2018 relating to 4 employees working in department M, 4 employees काम कर रहे हैं, A, B, C, D. वेजेस दिया है, ये पर मंथ है, ये वाला डेली बेसिस पे, बाकी के 3. ठीक है. नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक इज 6 days, 48 hours, मतलब हर दिन 8 घंटा. Sundays are paid holidays, okay, and there are no other holidays during the month. ठीक है. Contribution, PF contribution 8% of monthly wages by employee. PF contribution 8% of monthly wages by employer, and ESIC 3% of monthly wages by employees and 5% monthly wages by employer. तो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन सेम है, 8% दोनों की तरफ से, बट ESIC में अलग है. एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 3% है, एम्प्लॉयर उससे ज़्यादा दे रहे हैं, उसको 5% है. ठीक है. क्या क्या पूछा है, क्या क्या बनाना है? कैलकुलेट व्हाट, लेट मी सी. नेट वेजेस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर द मंथ. ओके. और क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड टू बी डिपॉजिट बाय द एम्प्लॉयर, then ESIC to be deposited by the employer, labor cost of the employer for the month of April chargeable to the job, and total cost of job requiring material 60 and overheads 50% of prime cost. So there are 5 things together in one sum. Okay, so instead of doing 5 different sums, if you revise this one sum, it is more than enough. Okay, so step by step जाते हैं. पहले क्या चाहिए? Net wages payable by the employer. So first we will start with that. Okay, start.
So write down net wages payable by employer. Okay, पहले ये चाहिए. This is for April 2018. Okay, start. Wages किसका? A, B, C और D का. 4 है ना? हाँ. So पहले वाला तो मंथली है, तो हमको तो ये मंथली बनाना है. ठीक है? या सो पहला वाला तो ठीक है 10,000. सेकेंड वाला 150 multiplied with 30 days. Next 120 multiplied with 30 days because I have to convert it in month. And next is 100 multiplied with 30 days. Okay, so do it. So this is 45 मतलब 4,500. ये कितना हो जाएगा? 36. तो 3,600. ये हो जाएगा 3,000. ठीक है? तो इससे मिलेगा मुझे मेरा ग्रॉस वेजेस. ठीक है, मेरा ग्रॉस वेजेस कितना है? टोटल करो. 45, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 100. ओके, देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो इसमें से कम होगा. बराबर. एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? पहला पीएफ, सेकेंड ईएसआईसी. ओके, हाँ. कितना? 8%. 8% ऑफ व्हाट? ग्रॉस वेजेस. और इधर कितना दे रहा है? 3%. 3% ऑफ व्हाट? ग्रॉस वेजेस. ओके, या सो 21,100 का 8%, 1688. एंड 21,100 का 3%, 633. ओके, सो दिस विल गिव मी नेट वेजेस. यही तो चाहिए था आंसर में. ओके, so 21,100 minus 1688 minus 633, 18,779. So this is my answer, 18,779. So the first part of the sum is done, net wages. So I got the answer. Next क्या चाहिए इनको? Next क्या चाहिए? Amount paid for PF by the employer. Okay, so next write down PF contribution to be deposited by employer. ओके, ये भी बहुत सिंपल है. या तो पहले वो क्या देखेगा? या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना. फर्स्ट ही विल चेक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हमको अभी मिला 1688. ओके, देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो दोनों का सेम ही है एज पर द क्वेश्चन. ओके, तो ऐड कर दो 1688 डबल कर दो 3376. 3376. So this is my answer. Okay, next what they want? Yeah, ESIC contribution, employee state insurance contribution, to be deposited by employer.
ओके सेम, पहले आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लो, ओके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना मिला था हमको 633, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चेंज होगा 5% है, वो ज़्यादा दे रहा है, ओके सो 5% ऑफ 21,100 ग्रॉस वेजेस बराबर, तो 21,100 का 5% 1055, ओके इसका टोटल निकालो कितना हो जाएगा 1688, ठीक है। और एक चीज़ पूछा है, या टोटल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल चार्जेबल टू द जॉब, ठीक है, या तो वो भी मिल जाएगा, तो राइट डाउन लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब, ओके दिस इज ऑल्सो ईजी, वी ऑलरेडी हैव ग्रॉस वेजेस अपने को मिला 21,100, टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो अभी मैं ऐड करूँगी, तो ऐड व्हाट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन से वेजेस बढ़ता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से वेजेस कम होता है, क्योंकि उसी के सैलरी से वो अमाउंट लेते हैं, इसलिए वो कम होगा, और एम्प्लॉयर क्या अपनी जेब से देता है, तो इसलिए वो ऐड होगा, ओके तो वी जस्ट कैलकुलेटेड 1688 एंड 1055, okay so 1055 plus 1688 plus 21,100, so 23,843, 23,843, and then the last part job cost, job cost sheet पूछा है, okay last part is they want you to calculate job cost sheet, बराबर ना, या total cost of the job मतलब job cost sheet, okay इसका ये मीनिंग है, so let us calculate job cost sheet for job number भी दिया है 120, okay for the month of April मतलब मंथली है, April 2018, start, okay so start with what, material, obviously direct material it is given 60,000, question में दिया है, then direct wages अभी कैलकुलेट किया ना हमने, डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है, ये रहा, ओके टोटल वेजेस 23,843, 23,843, how do you get this, from working note number D, ठीक है, add this you will get your prime cost, prime cost 83,843, add overheads, how much, 50% of prime cost, so 50% of prime cost, okay so 83,843 का 50%, 41,922, 41,922, okay so this will give me total cost
You add profit to this, you will get your sales. So 83, 843 plus 41, 922. So 1,25,000, 765. 1,25,000, 765. ठीक है. हाँ. इस सम में प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है like the earlier sum. Okay. So not given. So no need to calculate. Put a dash. Okay. Am I clear till here? Just acknowledge it in the chat box. Is it clear?